ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 1000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀਤਾ ਪੱਧਰਾ। 206 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟੀ ਰੋਕ। ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ VOTING। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਕਰਿਓ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ CM ਮਾਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ BJP ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਆ ਰਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਧਰਨਾ। ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ। ਕਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਯਾਸੀਨ। ਖਾਸ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੋੜਾਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 'ਚ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨੀਰਜ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਟੇਕ ਲਿਆ ਇਸ ਤੇ ਔਰ ਕੀ ਕੋਈ सबूतों के बेस पे लिया? देखिए, भारत की तरफ से रुख साफ है कि बेबुनियाद आरोप है और ट्रूडो लगातार भारत विरोधी जो माहौल है, जो भावना है कुछ लोगों में, उसको तूल देते हैं। और ट्रूडो सरकार के खिलाफ भारत की तरफ से सख्त स्टेटमेंट जारी किया गया है। जिस तरह से कनाडा सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया कि निज्जर हत्याकांड में भारतीय उच्चायुक्त जो इस वक्त कनाडा में और दूसरे राजनयिक भी जांच के दायरे में हो सकते हैं, उन्हें इस बारे में पत्र लिखा गया और इसका विरोध भारत की तरफ से किया गया। और अब से थोड़ी देर पहले अभी आपसे बात हो रही है, भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। जाहिर सी बात है, जो बयान भारत की तरफ से लंबा बयान आया है और सख्त रुख भारत ने अपनाया है ट्रूडो के खिलाफ और ट्रूडो सरकार के खिलाफ, उसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है। और इस वक्त जो कनाडाई उच्चायुक्त हैं कैमरून मैके, वो इस वक्त विदेश मंत्रालय में मौजूद है, जो हमें जानकारी मिली है, और उनसे भारत अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करा रहा है। तो ये मतलब भारत का रुख किस तरफ है? क्यों ये सब कनाडा की तरफ से किया गया? क्या कहा गया है? देखिए, निज्जर हत्याकांड को भारत एक गैंगवार, वहां के लोकल कानून व्यवस्था की समस्या मानता है, लेकिन ट्रूडो इसके लिए भारत सरकार और भारत की मिली भगत को इस पूरे मामले में हत्याकांड में मानते हैं। और ट्रूडो, अभी आपको याद होगा, आसियान में
कोई मुलाकात नहीं हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रूडो से, लेकिन ट्रूडो ने इस तरह का बयान दर्ज किया कि उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने अपने मसले को रखा है। लेकिन ट्रूडो का जो रवैया है, आपको याद होगा भारत भी आए थे G20 के दौरान, उसके बाद जाकर वो कनाडा में कैसा बयान दिया था। उसके बाद आसियान में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जबरदस्ती कहेंगे, जबरदस्ती प्रधानमंत्री कहीं जा रहे थे और उस बीच वो आकर मिलने की कोशिश करते हैं। तो आमतौर पे इस तरह का रवैया जो है, चाहे सरकार के फैसलों का या फिर इस तरह से जब आप मंच पे होते हैं, आसियान जैसे मंच पे, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और अब निर्जर हत्याकांड पे जो पत्र लिखा था कनाडा सरकार ने, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसी जवाब के तहत आज कनाडा के उच्चायुक्त को इस वक्त साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय के दफ्तर में तलब किया गया। तो भारत साफ साफ ये कहना चाहता है कि ट्रूडो ने या कनाडा ने ये बयानबाजी जो है वो दबाव में आकर की, वहां के जो लोकल ग्रुप्स हैं उनके। देखिए, नहीं, भारत का ये कहना है या ट्रूडो की जो गतिविधियां रही वो भारत विरोधी रही हैं और भारत विरोध के जो लोग हैं, तत्व एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, उनको वो हवा देते रहे। और मौजूदा में वो ट्रूडो की सरकार भी माइनॉरिटी सरकार है, यानी उसके पास बहुमत नहीं और आने वाले साल में वो गिर भी सकती है सरकार। तो ऐसे में अपनी घरेलू राजनीति को साधने के लिए, अपने सरकार को बचाने के लिए भी भारत विरोधी माहौल बनाए रखते हैं ट्रूडो। और अभी जो पत्र लिखा गया है निर्जर हत्याकांड में, वो उसी का एक हिस्सा है। लेकिन भारत की तरफ से पत्र के जरिए राजनयिक तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और एक लंबा पत्र आधिकारिक तौर पे जारी किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। और इस वक्त जो भारत में कनाडा के उच्चायुक्त हैं, विदेश मंत्रालय के दफ्तर में हैं, वहां पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले। और उन्हें भारत की तरफ से जो भारत का पक्ष है, जो आधिकारिक बयान आज जारी किया गया था, उन तमाम चीजों को व्यक्तिगत तौर पे सामने रखा जा रहा है विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो क्या भारत की तरफ से कोई सख्त एक्शन हो सकता है नीरज? देखिए, भारत ने साफ कहा, जिस तरह का पत्र है, आपने अगर भारतीय उच्चायुक्त जो कि इस वक्त कनाडा में और दूसरे वरिष्ठ राजनयिकों को इस संदेह की दृष्टि से देखेंगे कि आप इस तरह का बयान जारी करेंगे या इस तरह का पत्र लिखेंगे कि उस जांच के दायरे में भारत के राजनयिक भी शामिल है, तो ये भारत को नागवार गुजरेगा। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि जो कनाडा में राजनयिक है वो भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, कनाडा के राजनयिक, और भारत के पास ये अधिकार है कि वो भी आने वाले वक्त में कार्रवाई करे। तो भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस वक्त तलब किया गया है कनाडा के उच्चायुक्त को, ये जैसे पिछली बार नीरज कुछ वापस भेज दिए गए थे जो उच्चायुक्त थे उनके। देखिए, बिल्कुल कनाडा के बहुत सारे जो राजनयिक थे उनकी संख्या को बहुत कम कर दिया गया था, आपको याद होगा, दोनों तरफ से। और वो एक कार्रवाई थी तब जब खुद ट्रूडो ने कनाडाई पार्लियामेंट में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था, भारत से जुड़े लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाया था निर्जर हत्याकांड में। और उसके बाद संबंध बिगड़े, बीच में ऐसा लगा कि नहीं, संबंध सुधर सकते हैं। लेकिन निर्जर हत्याकांड को लेकर जो पत्र लिखा गया है वो अपने आप में साफ बताता है कि ट्रूडो का रुख बदला नहीं और अपनी घरेलू राजनीति को साधने के लिए भारत विरोधी बयान और भारत विरोधी माहौल बनाने में लगे हुए हैं, ताकि अलगाववादी लोगों को प्रश्रय मिले और भारत विरोधी जो तत्व हैं उनका उन ट्रूडो को समर्थन मिले। ठीक है, शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी दे लई। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਜਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ।